expert session. So I am Saksham Sharma, and just to inform all of you that this session is being organized by Meditation Club. So Meditation Club एक initiative है जिसमें कुछ like-minded लोग ने ये सोचा कि since the meditation is a need of hour, why not to do it in a way कि सब लोग इसको practice कर सकें. And with that thought, some of us, people like me, have taken an initiative in which we are training meditation free of cost from morning 6:30 to 7 online. Okay, so we have a WhatsApp group. If you are not part of it, if you are interested, you can join that. And in that initiative, every Sunday we do an expert talk on a topic related to mental health. तो कोई भी हम एक टॉपिक उठाते हैं related to mental health, and we invite a speaker who is an expert in that, and yeah, so he shares their insight about the topic, which makes, so basically mental health is an issue. I personally myself have seen a lot of challenges as I have grown up, एंड आई थिंक इसकी एक समझ होना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जितनी ज़्यादा हमें चीज़ों की समझ होती है, मैं समझता हूँ कि हम उतने अच्छे से रिस्पॉन्ड कर पाते हैं, सिचुएशन को फेस कर पाते हैं. एंड यूजली हम बहुत कुछ पढ़ नहीं पाते हैं बिकॉज वी आर बिजी इन आवर लाइफ. बट आई थिंक ये जो सेशंस हो रहे हैं, हम पिछले 1 महीने से एक्सपर्ट टॉक कर रहे हैं. हमारे जो लास्ट 3 एक्सपर्ट टॉक्स हैं वो भी हमने यूट्यूब पे अपलोड करे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं. और आज का भी हम यूट्यूब पे अपलोड करेंगे आफ्टर दिस सेशन. सो आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू कि आपने टाइम निकाला फॉर दिस टॉक. एंड आई एम वेरी श्योर कि आज जो हमारे साथ में स्पीकर हैं प्रतीक श्रीवास्तव, from his rich experience, he will take us through the depth of the topic, and definitely it will help our understanding and help us to address our own challenges. प्रतीक श्रीवास्तव को हम प्रतीक भाई कहते हैं, so we share that bond. And just to introduce him, Prateek Srivastav, Prateek bhai is an IT professional. He is working for an US-based IT company, and he is a product manager there. And then before that, also he's a chemical engineer by background, and he has also worked in some other companies as well, including Shell. At the same time, on his personal front, he is interested into spirituality and meditation, and have been practicing it for past 10 years. And he's based out of Jodhpur and Rajasthan, and he has also done a good work for uplifting the rural people in Rajasthan. I think he will share more about it when he address. So Prateek Bhaiji, it's a pleasure and an honor to have you here with us today. Thank you so much for taking out the time and coming here to address our participants. Now, with this, I hand it over to you. So प्रतीक भाई, मैंने आपका इंट्रोडक्शन बहुत शॉर्ट में दिया था बिकॉज बट आई थिंक इफ आई मिस समथिंग यू कैन ऐड, और मैंने कुछ मतलब बताया नहीं हो जो कि बहुत सिग्निफिकेंट हो. आई ऑलवेज बिलीव कि व्हेन वी इनवाइट एक्सपीरियंस पीपल, देयर इज सो मच दैट दे हैव डन कि उसको 2 मिनट में सम अप करना मुश्किल होता है. So yeah, if something I have missed, if you want to share about you, please start with that. And then for the audience, the session का flow ऐसा रहेगा कि हम लोग 1 घंटे इस टॉपिक में डीप डाइव करेंगे. अगर आपके कुछ बीच में क्वेश्चंस है तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द सेशन भी हम लोग Q&A करेंगे, so you can also ask your questions there. So looking forward for an exciting session. Over to you, Prateek bhai. Thank you. Thank you so much, Saksham bhai, and it's been a pleasure. It's a pleasure to be here. बहुत ही अच्छा लग रहा है, and thank you for inviting me and ये opportunity देने के लिए. आपने बिल्कुल सही तरीके से पूरा सारे points को touch up कर लिया है, and thank you for that again. So नाम और जो भी काम किया है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, रादर इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट कि हम आज इस सेशन से क्या टेक अवे लेके जाएं. सो जैसे हम प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर इट, एक चीज दिमाग में आ रही थी कि व्हाई वुड समवन वांट टू लिसन टू दिस. कोई गिल्ट के ऊपर कोई भी सेशन सुनने के लिए क्यों
अपना टाइम इन्वेस्ट करेगा। तो उसको माइंड में रखते हुए एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई थी। पर ये एक ऐसा टॉपिक है, गिल्ट कॉन्शियसनेस, या फिर आप ये कह लें कि गिल्ट से मुक्त होना, ये एक ऐसी चीज है विच इज क्वाइट अ लॉट इग्नोर्ड अपने जीवन में भी और कई जगह पे भी। कोई गिल्ट से डील करना कभी सिखाया नहीं है। और जो लोग इस फील्ड में हैं, इवन दे डोंट नो हाउ टू डील विद इट। उनको नहीं पता कि गिल्ट से क्या नुकसान होते हैं और गिल्ट से डील कैसे किया जाता है, क्या चीज है। आई एग्री विथ यू प्रतीक भाई, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज आई थिंक जब बात आती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट की, तो इसमें हम थोड़े से अनएक्सपेक्टेड अनरियलिस्टिक गोल्स रखते हैं, या and then of it's like majority of the times we are not able to meet up those goals. हम resolutions लेते हैं न्यू ईयर में, and then when we are not able to do something which we have thought, हमने जिस चीज को बहुत डिटरमाइंड होके सोचा है, चाहे वो कुछ भी हो, डाइट को लेके हो या सेल्फ इम्प्रूवमेंट को लेके हो या पढ़ने को लेके हो, तो एक गिल्ट बहुत ऐसा आता है जो आपको डिमोटिवेट करता है, and it make you feel like कि you are not good enough and you cannot do anything, right? एब्सोल्युटली, Very, एब्सोल्युटली very एग्री टू important दैट। topic indeed. Yes, Vipin bhai. या अग्री टू दैट। तो गिल्ट को फेस करना या गिल्ट से डील करना, अपन ने जो भी सीखा है, वट एवर वी हैव लर्नड, उसमें हम गिल्ट को एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट, एज अ नेगेटिव स्टिमुलस वो लेते हैं। और एक बहुत अच्छा, आज सुबह एक स्लोगन मिला था जिसमें इट वाज रिटन कि गिल्ट इज नॉट मेंट टू क्रश यू बट टू अवेकन योर कॉन्शियंस, लिसन टू इट, लर्न, देन लेट इट गो। आपको गिल्ट क्रश यानी कि डिस्ट्रॉय यानी कि खत्म करने के लिए नहीं है, आपका मनोबल तोड़ने के लिए नहीं है, पर आपको जागृत करने के लिए है, आपकी चेतना को जागृत करने के लिए है। उसको सुनिए, उससे सीखिए और फिर जाने दीजिए। राइट। तो हम लोग अपने भी जीवन में देखते हैं, हर किसी के जीवन में ऐसा होता है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं खुद से भी और दूसरों से भी, और दूसरे हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें जो कि कई बार हम उस एक्सपेक्टेशंस पे नहीं आ पाते हैं। तो अंदर में एक इनसिक्योरिटी रहती है कि ये हो नहीं पाया। तो सामने वाला जब पूछता है कि क्या आपने ऐसा किया, तो हम या तो झूठ बोल देते हैं, या बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जब कोई भी चीज, हम स्पिरिचुअलिटी में सोल के बारे में पढ़ते हैं, तो एक स्पिरिचुअल मॉडल में कोई भी चीज विद रेफरेंस टू सोल ली जाती है। तो जब भी कोई चीज सोल के एक डायरेक्शन से ऑपोजिट, यानी कि सोल की सोच से अलग होके, विरुद्ध होके करते हैं, तो उसमें गिल्ट आता है, क्योंकि ये यथार्थ काम नहीं है। जैसा होना चाहिए था वैसा हुआ नहीं। तो अंदर में कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में भारीपन आता है, कई बार गिल्ट आता है। तो लोग क्या करते हैं, और स्पेशली हमारी जनरेशन वाले, वो लोग क्या करते हैं कि कई बार उसको इग्नोर कर देते हैं, या फिर किसी दूसरे स्टिमुलस में अपने आप को इन्वॉल्व कर देते हैं, उसको जाने देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पास्ट का बहुत सारा एक बैगेज होता है, एक लोड होता है। तो पीपल डोंट एड्रेस दैट, उसको they don't try to solve that knot inside them। जो एक गांठ बंधी हुई है बुद्धि में, उसको सॉल्व नहीं करते हैं, इंस्टेड उसको एक तरह से बाईपास कर देते हैं कि आई जस्ट मूव ऑन। राइट। पर वो चीज, उसका हुआ क्या, वो सॉल्व नहीं हुई, वो हमारी अवचेतना में बैठ गई। और जब वो अवचेतन मन में, यानी कि सबकॉन्शियस में वो बैठ जाती है, तो वो अलग अलग रूप से बाहर आती है। वो कई बार हमको इनसिक्योर करेगी, कई बार हमको मूड स्विंग्स होंगे, कई बार विल गेट स्केर्ड, विल गेट फियर, हमारा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, एंड वी डोंट इवन नो अबाउट इट कि उसका अंडरलाइंग रीजन क्या है। बहुत सारे साइकोलॉजी के ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बहुत सीवियर एडिक्शन होता है। आजकल भी हम देख रहे हैं कि लोगों में बहुत अलग अलग तरीके के एडिक्शंस आ रहे हैं, जो कि पहले पेरेंट्स के टाइम पे ऐसा नहीं था। तो वो सारे एडिक्शंस दे राइज आउट ऑफ दिस गिल्ट कॉन्शियसनेस, इनसिक्योरिटीज, जो कि आगे जाके पश्चाताप का रूप लेती है और उसको दबा देते हैं। तो इट टर्न्स इनटू एन एडिक्शन, इट कम्स आउट इन द फॉर्म ऑफ एडिक्शन। तो हमको, आई कैन बेट कि 90% लोगों को पता भी नहीं है कि दे हैव गिल्ट
इन द सबकॉन्शियस, एंड उनको पता भी नहीं है कि बुद्धि में वो बैठा हुआ है और वो चल रहा है जीवन, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए। तो इसको आगे अच्छे से समझते हैं। तो एक चार्ट टाइप का बनाया है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है, इसको समझने की कोशिश करेगा। दिस इज कोर साइकोलॉजी, कोर स्पिरिचुअलिटी। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जैसा हम लोग सोचा करते थे स्पिरिचुअलिटी ये वैसा नहीं है। अच्छा, गिल्ट को लेकर एक चीज दिमाग में आई थी कि स्कूल से लेकर स्क्रिप्चर्स तक गिल्ट एक ऐसी चीज है जिसको हम लोग हैबिट चेंज के लिए यूज करने लग गए हैं, कि अगर किसी की आदतें सुधारनी है तो उसको गिल्टी फील करवा दो। छोटा बच्चा है और उसने अगर बहुत ज्यादा टीवी देख रहा है, तो मम्मी उसको गिल्टी फील करवाएगी ताकि वो टीवी ना देखे। तो ये क्या होता है कि हमारी हैबिट्स जो होती हैं, वो कुछ हैबिट्स सरफेस लेवल पे होती हैं और कुछ हैबिट्स बहुत लंबे समय की होती हैं। तो जो सरफेस लेवल की हैबिट होती है ना, उस पे ये ठीक है, उस पे ये काम करेगा, कि थोड़ा बहुत आपने गिल्ट फील करवा दिया, वो चेंज हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो पहले क्या होता था कि आप पुराने स्क्रिप्चर्स उठाएंगे, पुराने साधु संन्यासियों की बुक्स खोलेंगे, तो दे यूज टू इंश्योर कि ये गिल्ट कॉन्शियसनेस जो है ये इंस्टिल हो जाए लोगों पे, ताकि वो ये काम, बुरे काम ना करें। तो पहले के जमाने में ठीक था, पहले इट वाज ऑल राइट। उसके बाद क्या हुआ कि पहले ये सही क्यों था, उसका कारण ये है कि पहले इतना ज्यादा जो था, जो बोलते हैं ना पाप का खाता, जो इतना इन्फ्लुएंस था, इतना ज्यादा यू कैन से कि एक्सपोजर था, स्पेशली यंग जनरेशन को, वो नहीं था। धीरे धीरे जैसे समय बीता, वो एक्सपोजर टू मीडिया, बहुत छोटी उम्र में बहुत ही ग्राफिक कंटेंट देखना, टेलीविजन्स पर, मोबाइल पर, आजकल छोटे बच्चों के पास मम्मी पापा उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं, दे गेट एक्सपोज टू दैट। Now, what happens is कि when you get exposed to such graphic content at a very low age, तो माइंड जो होता है उसमें वो सारी चीजें इम्प्रेस हो जाती हैं, एंड 90% ऑफ द केसेस में गलत चीजें ही इम्प्रेस होती हैं। अब क्या होता है कि बच्चे को तो समझ में नहीं आया, वो आदत उसकी डेवलप हो गई बचपन में। जब वो बड़ा होता है, देन ही रियलाइजेज, ही वॉचेस द सोसाइटी अराउंड हिम, उसको बाहर दिखती है चीजें, और उसको ऐसा महसूस होता है कि ये गलत है, मुझे ये स्टॉप करना चाहिए। एंड दैट्स वेयर द होल गेम स्टार्ट्स, द गिल्ट एंड द गैंग गेम। तो इसको समझते हैं लेफ्ट टू राइट, इस ग्राफ को। आई क्विकली यूज माय पॉइंटर। तो लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं कि एक अनवांटेड एक्शन है, जो कि एक पास्ट एक्शन हो सकता है, इट कैन बी अ हैबिट। और ये जो हैबिट है ये एक इनसिक्योरिटी से अराइज हुई है। व्हाट आई मीन बाय दैट इज कि जैसे मान लीजिए कि किसी की आदत है, वो है झूठ बोलने की। तो ये झूठ बोलने की आदत क्यों हुई? क्योंकि उसके अंदर एक इनसिक्योरिटी थी कि अगर मैंने सच बोल दिया तो मुझे जज करेंगे, या मुझे कोई कुछ डांट देगा, या कुछ मुझे मार भी पड़ सकती है। तो वो एक तरह से इनसिक्योर है अंदर से। तो एक एग्जाम्पल लेंगे कि एक छोटा बच्चा है, उसके मम्मी पापा ने उसको बोल रखा है कि तुम्हें फर्स्ट रैंक लेके आनी है क्लास में। ठीक है। तो पहली बात तो ये एक्सपेक्टेशन छोटे बच्चे से सेट कर दी कि तुम्हें इतने मार्क्स लेके ही आने हैं। अभी वो छोटा बच्चा क्या हुआ कि स्कूल में गया, तो पहली बार उसने पढ़ाई की अच्छे से, उसके नंबर आ गए, तो मम्मी पापा ने बहुत रिवॉर्ड दिया, और उसको बहुत ऐसे उसके इस एस्पेक्ट को उसकी आइडेंटिटी बना दी। क्या एस्पेक्ट को? कि यू आर अ टॉपर, यू आर द टॉपर ऑफ अ क्लास, राइट? तुम बहुत अच्छे विद्यार्थी हो, और वो उसकी आइडेंटिटी बन गई। अब क्या हो रहा है कि छोटा बच्चा जो है वो इस आइडेंटिटी को चिपका लिया है। नाउ, अब उसके जब नेक्स्ट टाइम मार्क्स गलत आए, कम आए, तो ही लाइड टू हिज पेरेंट। क्यों? क्योंकि उसको ये डर था कि ये जो मार्क्स गलत आए, ये अगर मैंने उसको सच बता दिया पेरेंट्स को, तो दे वोंट लाइक इट, उनको पसंद नहीं आएगा ये। तो इससे बढ़िया मैं झूठ बोल देता हूँ, दैट्स एन ईजी ऑप्शन, पेरेंट्स को पता नहीं चलेगा। तो झूठ उसने बोल दिया, बट उस झूठ का क्या हिसाब निकला कि सोल लेवल पर, माइंड लेवल पर उसमें गिल्ट बैठ गई। उस बच्चे को हो सकता है रियलाइज भी हुआ हो,
उसको अंदर में लगा हो कि ये मैंने ठीक नहीं किया, ये गलत कर दिया, पर वो गिल्ट बैठ गई, तो उसको ये दिमाग में आया, आई डिड समथिंग बैड, मैंने कुछ गलत किया। तो ये गिल्ट जो होती है, ये कई चीजों से आती है। अभी तो एक मार्क्स का एग्जाम्पल लिया है, कई बार ये गुस्सा करने पे भी आ जाती है। सपोज किसी पे गुस्सा कर दिया आपने, किसी संस्कारवश, या फिर उसके बिहेवियर, वो एक्सपेक्टेशन थी वैसा उसने बिहेव नहीं किया, तो आपने वो गुस्सा कर दिया, तो आपको मन में ऐसा फील हुआ कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई शुडंट हैव डन दैट, रॉन्ग थिंग, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो आप गए, ओके, आई आई गो बैक, आई आई अपोलोजाइज, मैं जाके माफी मांगूंगा। आप गए और बोला कि आई एम सॉरी, मैं वापस ये नहीं करूंगा। तो उसने भी बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और आप हो जाता है कभी कभार, बात ठंडी हो गई। तो उसने चेक किया और चेंज कर दिया, ठीक है। अभी ये चीज जो चेक और चेंज की ना, ये बहुत ही सरफेस लेवल के संस्कार को चेक और चेंज किया, जो कि बहुत रेयर होता है। उसको रियलाइज हुआ कि ठीक है, ये मतलब हीट ऑफ द मोमेंट था, हो गया, कोई बात नहीं। एंड उसने उसको एड्रेस कर दिया। सबसे पहली बात, वो समझ गया कि ये गड़बड़ की थी, आई विल गो एंड चेंज इट, मैं ठीक कर दूंगा, इसको चेंज कर दूंगा, राइट। अभी क्या हुआ कि कई बार ये रियलाइजेशन होता है, पर वो वापस नहीं जाता है चेंज करने के लिए। और उसके पास, वो हो सकता है उसका कोई भी कारण हो सकता है, ही माइट नॉट हैव द पावर टू चेंज। उसको ऐसा अंदर से लग रहा हो, शर्म आ रही हो, तो वो नहीं गया। ठीक है, नहीं गया, उसने एड्रेस नहीं किया, उसको दबा दिया, बोलता है अरे ये तो चलता है, समाज ही ऐसा है, कलयुग है ना, इतना लोग तो क्या क्या कर रहे हैं, मैंने तो जरा सा बस गुस्सा ही किया है ना। और भी वो जस्टिफाई करता है उसको कि ठीक है, ऐसा है, ऐसा ऐसा है। लेकिन समवेयर डाउन द लाइन वो गिल्ट रहता जरूर है कि गड़बड़ हुई है, क्योंकि वो अयथार्थ काम हुआ है। और इसको आप चाहो ना चाहो, ये चीज सदा रहती है, एक गिल्ट। ठीक है। तो सेशन को हम ऐसे ऑर्गेनाइज किए हैं कि पहले आप समझिए कि ये गिल्ट निकला कहाँ से, देन वील ट्राई टू सॉल्व इट। और इस गिल्ट से नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि आपकी जो ओवरऑल कैपेसिटी होती है अच्छा काम करने की, प्रोडक्टिव होने की, अचीव करने की, वो नलिफाई होती जाती है जितना ज्यादा आप भारी होते हो। तो विल डिस्कस दैट। तो क्या होता है कि उसको जब ये मन में आया कि मैंने कुछ बुरा किया, तो उसने उस चीज को चेक और चेंज नहीं किया, उसने वापस से वही मिस्टेक की। तो वो कई बार चेक भी नहीं कर पाया, कब कई बार उसको लगा कि यार ये संस्कार ठीक करना आसान नहीं है, इट्स नॉट नॉट इजी टू डू दैट। बहुत पुराना लग रहा है, या फिर ऐसा लग रहा है बहुत कड़ा है ये संस्कार। और मेरे मम्मी पापा भी करते हैं गुस्सा, तो नेचुरल है, मेरे अंदर तो हो गई, मैं तो ऐसे ही हूँ। ठीक है। वो गिल्ट था यहाँ पर। फिर वो क्या होता है कि कई बार वो एक्शंस रिपीट करता है, तो उसको फिर शेमफुल फील होता है। तो गिल्ट और शेम में एक शब्द का फर्क है। गिल्ट में इंसान बोलता है कि मैंने कुछ गलत किया, शेम में बोलता है कि मैं गलत हूं, मैं हूं ही ऐसा। वो एक्सेप्ट कर लेता है कि आई एम लाइक दैट, मैं ऐसा ही हूं, मैं क्रोधी ही हूं। वो अपनी आइडियोलॉजी, अपनी एक आइडेंटिटी बना लेता है इस आधार पे कि दिस इज हु आई एम। और ये एक ऐसा मार्ग होता है दोस्तों, जहां से निकलना, इट्स अ वेरी टफ टास्क। ये जिसको समझ में नहीं आया ना, वो इस चक्र से निकल नहीं पाता। इस फॉल्स आइडेंटिटी, ये जो आइडेंटिटी बनी है उसकी, ही वोंट बी एबल टू गेट आउट ऑफ इट। तो क्या होता है कि पहले इस बात को हम 10 साल पहले अगर ले लें, तो 10 नहीं, आप 20 साल पहले ले लीजिए थोड़ा सा। तो समाज जो था, द वे आर सोसाइटी वॉज स्ट्रक्चर्ड, तो उसमें इन सारी चीजों को एड्रेस किया जाता था। आप घर में कोई टीवी चल रहा है, उसमें कोई अश्लील गाना गाना बज रहा है, कोई गीत ऐसा बज रहा है जो कि अयथार्थ है, तो आप ऑटोमेटिकली उसको बंद करते थे। यू यूज टू थिंक कि नहीं, ये सही नहीं है, अंदर से पता चलता था, आप बंद कर देते थे। अभी द सिचुएशन इज सो बैड कि हर किसी के हाथ में फोन है। पीपल हैव एक्सेस टू द वर्स्ट कंटेंट एंड द बेस्ट कंटेंट। तो वो चीज, और वर्स्ट बहुत ज्यादा है, खराब कंटेंट समाज में बहुत ज्यादा है।
तो क्या हो रहा है कि लोग बहुत ही बहुत इजीली उस हम उसको स्पिरिचुअलिटी में बोलते हैं रावण राज्य की तरफ खिसक जा रहे हैं, राइट। तो उसमें क्या हो रहा है कि ये जो गिल्ट से शेम वाला जो ट्रांजिशन है ना, ये बहुत जल्दी हो रहा है, एंड स्पेशली इट्स देयर विद द यूथ। यूथ जो है वो बहुत अंदर ही अंदर बहुत शर्मिंदा भी किसी किसी चीज से हो रहा है। आई अभी इस संदर्भ में एक एग्जांपल देना चाहेंगे। अभी रिसेंटली एक फ्रेंड से मुलाकात हुई। तो उससे बात हुई तो वो कहता है कि यार मैं स्मोक नहीं करना चाहता हूँ, आई डोंट वांट टू स्मोक, क्योंकि मेरे घर में सभी लोग बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ वगैरह करते हैं, बट पीयर प्रेशर के कारण या फिर मेरे को उनके बीच में ढलना भी है तो मैं ये कर लेता हूँ, और यार मैं ऐसे ही हूँ। उसने एक जस्टिफिकेशन दे दिया कि दिस इज हु आई एम, और सभी लोग कर रहे हैं तो वो जस्टिफाइड है ना। तो उसने शेम को जस्टिफाई करता गया वो। अभी हम केवल यहाँ तक बात कर रहे थे गिल्ट और ये सबकॉन्शियस लेवल की बात करते, अब ये बहुत ही अंदर चला गया मामला। अब इस चीज को वो जस्टिफाई करने लग गया कि दिस इज फाइन, इज जस्ट फाइन टू डू डू दैट, क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं ना। और टीवी पे भी तो देखते ही है ना, विमल के एड में आते रहते हैं, वो पान मसाले को भी बेचते हैं, वो सिगरेट को भी बेच रहे हैं, तो दैट्स फाइन टू डू दैट। तो उसको एक जस्टिफिकेशन मिल गया। अब क्या हो रहा है, ये जो आइडेंटिटी है ये डिनायल और झूठ में चेंज हो रही है। धीरे धीरे वो डिनाई कर रहा है कि ये गलत नहीं है। वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, वो अपनी लाइफ को डिनायल की तरफ लेके जा रहा है कि नहीं, एम आई रियली रॉन्ग, क्या मैं सही में गलत कर रहा हूँ, क्योंकि वो लोग भी तो कर ही रहे हैं ना। तो वो फिर इस चीज को झूठ से जस्टिफाई करता चला जा रहा है। तो दिस इज द गैंग ऑफ गिल्ट, राइट। एक आपकी तरफ इकोस्फियर बनाया हुआ है। यू थिंक यू आर राइट, आपको लग रहा है आप सही हैं, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सच है उसको उस पे आपने कंबल डाल रखा है यहाँ पर। ये सच जो था, जो कि एक संस्कार की वजह से उसके ऊपर बिल्ड हुआ था, उस पे एक ब्लैंकेट पड़ गया है। अब वो जो बीज है, जो कि गलत चीज का बीज था, वो सदा के लिए है, उस पे तो नजर गई नहीं। उसके ऊपर बहुत सारी चीजें बिल्डअप हो गई, उस पे भी नजर नहीं जा रही है। एंड इवेंचुअली व्हाट हैपेंस कि वो शेमलेस बन जाता है, आई डोंट केयर। तो ये जो संसार में, जो अपने समाज में ये जो बड़े बड़े अपराध हो रहे हैं ना, अभी आप न्यूज़पेपर खोल के देख लो, न्यूज़पेपर खोल के देख लो, आए दिन कुछ ना कुछ ट्रेंडिंग होता है, और ट्रेंडिंग इतना फास्ट है कि लोग भूल जाते हैं। अभी कोई हॉस्पिटल का केस हुआ था, मर्डर का केस हुआ था, फिर अभी अगेन समथिंग हैपेंड इन पालागाम, राइट। तो ये जो शेमलेस प्रवृत्ति है वो मनुष्य की गिल्ट को एड्रेस ना करने से कहीं ना कहीं बढ़ती चली गई, राइट। और वो इतनी ज्यादा हो गई कि टर्न आउट कि वो व्यक्ति जो था वो क्रिमिनल बन गया, बिकॉज उसने उस चीज को कभी एड्रेस किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं था कि वो अंदर है। एंड ओवर द टाइम वो एक ऐसे मार्ग पर निकल गया जिससे वापस आना बहुत मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि उसको सॉल्व करने का तरीका उस चीज को सॉल्व करने का तरीका वापस पश्चाताप ही है, उसको शेमफुल फील करवाना, उसको गिल्ट फील करवाना। सो इन अ वे यू आर नॉट सॉल्विंग दैट, आप उसको बढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी के हिसाब से। इट्स नॉट हेल्पिंग। वो अगर परेशान है, इवन इफ, तो हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि कई लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यहाँ पे गड़बड़ हुई है, अभी चेंज करना है, पर इतनी शक्ति नहीं मिल रही, तरीका नहीं पता, बार बार उसी हैबिट में चले जा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास चल रहा है कि नहीं, अभी एक लेजीनेस का संस्कार होता है। तो लेजीनेस का संस्कार क्या होता है कि एग्जाम है कल, लेकिन नींद भी आ रही है और बिंज वॉच भी करना है, क्योंकि एक नया एपिसोड रिलीज हुआ है अभी गेम ऑफ थ्रोन्स का, वो भी देखना है, कल एग्जाम भी है। तो पहले ये देख लेते हैं, वो पढ़ लेंगे, और एग्जाम में फेल भी हो गए, बट दैट्स ओके। तो वो, उसको पता चला कि फेल हो गए, गिल्टी फील हुआ, अभी वो चेंज करना चाह रहा है, नहीं मैं नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगा, पर शक्ति नहीं आ रही है वो चेंज करने की।
तो फिर क्या किया जाए? तो लेट्स डाइव इनटू हाउ टू चेंज दिस होल साइकिल ऑफ गिल्ट एंड शेम कॉन्शियसनेस। किसी को कुछ ऐड करना है? सक्षम भाई को कुछ ऐड करना है? किसी को कुछ कहना है? एनी थॉट्स? प्रतीक भाई, आई थिंक इसमें वैल्यू सिस्टम का भी बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि यस, किसी एक्ट के लिए कोई पर्सन गिल्ट फील करता है, कोई दूसरा फील फील नहीं करता है, यस, क्योंकि उसकी वैल्यू उसके हिसाब से कि मतलब ये काम सही नहीं था, जबकि यस, दूसरों के लिए वो सही था। तो यस। जितना ज्यादा हाई वैल्यू सिस्टम होगा, उतना ज्यादा शायद गिल्ट फील होगा, इजंट इट? एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली एग्री। हम उस पे आने वाले थे, नेक्स्ट उस पे यही था, बट वेरी वेल सेड। और इसमें वैल्यू सिस्टम, आपका अपब्रिंगिंग कैसे हुई है, आपका एजुकेशन किस लेवल का है, आपको किस दोस्तों का साथ मिला है, वो भी बहुत डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स कि आपको एक चेंज जो होता है, जब तक वो व्यक्ति को नजर नहीं आएगा तब तक उसको वो चीज महसूस नहीं होगी। ये जो शेमलेस वाला स्टेज है, ये बहुत जल्दी भी हो जाता है किसी किसी के लिए। बहुत छोटा सा एक सिग्नल मिलता है दिमाग में कि ये करना ठीक था या नहीं था, वो सोचता है और फिर वो आगे निकल जाता है, बहुत आगे। तो क्योंकि वो वैल्यू सिस्टम, वो बैरियर्स है नहीं, नॉट इन द राइट प्लेस उसको रोकने के लिए, तो वो चीज बहुत आगे निकल जाती है, राइट? तो इस चीज को कैसे एड्रेस किया जाए? तो यहाँ पर एक बहुत ही मिनिमलिस्ट सी स्लाइड प्रिपेयर किया है। इसको हमने बोला है, गिल्ट इज कॉमन एंड चेंज इज हार्ड। इस समाज में, जैसे अभी बता रहे थे, कि बहुत कॉमन है गिल्ट कॉन्शियसनेस में आना, क्योंकि बहुत सारे स्टिमुलस हैं एनवायरनमेंट में जिससे आप अयथार्थ तरीके से आगे बढ़ सकते हो, आप अपनी फाउंडेशनल वैल्यूज को भूल सकते हो। तो वो जो अनवांटेड एक्शंस हैं, वो बढ़ते चले जा रहे हैं यूथ के, स्पेशली ये यूथ में हो रहा है। जो अयथार्थ चीजें हैं, जो अयथार्थ हैबिट्स हैं, हैबिट्स कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, और कैन बी एडिक्शन टू ड्रग्स, इट कैन बी एडिक्शन टू एनी ऑब्सीन कंटेंट, कुछ भी हो सकता है ये। तो ये सारी चीजें बढ़ती चली जा रही हैं, और इसको चेंज करने की जो ताकत है, द पावर टू चेंज, वो कम होती चली जा रही है। तो हमको क्या करना है? जो अनवांटेड एक्शंस हैं उसको कम करना है, और जो चेंज करने की ताकत है उसको बढ़ाना है। तभी इस गिल्ट से मुक्ति मिलेगी, क्योंकि गिल्ट तभी हो रहा है क्योंकि ऑलरेडी कुछ काम कर लिया है। गिल्ट जरूरी नहीं है कि पास्ट, कई बार बहुत पुराना कुछ होता है, एक ही इंस्टेंस होता है छोटा सा, लेकिन वो चीज बहुत खाती है। उसको कैसे करें? तो उस चीज के लिए तो ठीक है, देर इज वन वे कि उसको एक्सेप्ट करो। what has happened, now I have changed, I'm a better person, मैं अलग हूँ, I'm not जो मैं 10 साल पहले था। तो ठीक है, आई कैन एक्सेप्ट दैट। पर उस चीज का क्या करें जो बार बार अभी भी हो रही है? वो संस्कार चेंज नहीं हो रहा है। यू नो एक किसी इंसिडेंट को एक्सेप्ट करना बहुत आसान है, लेकिन किसी हैबिट को आप कैसे चेंज करोगे? उसमें बहुत ज्यादा, हर बार, एवरी टाइम यू डू इट, आपको वो चीज बुरी लगेगी, राइट? तो हम ये देखते हैं कि जनरली, आई एम जस्ट ट्रैकिंग द टाइम, हाँ, तो जनरली हैबिट चेंज जो होता है उसको हम स्टेजेस में देखा करते हैं, राइट? तो कोई भी हैबिट चेंज होता है, शायद यहाँ पे स्वपन भाई का भी सेशन हुआ था, उन्होंने न्यूरल रीवायरिंग के ऊपर बहुत अच्छा वो बताते हैं, इट्स वेरी हेल्पफुल। तो हैबिट चेंज जो होता है, वो करना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ गिल्ट फ्री माइंड। गिल्ट फ्री बुद्धि के लिए हैबिट चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज कैन बी कि चेक करना, जैसा अभी आपको बताया, कि ये चीज़ है कि नहीं है, गड़बड़ है कि नहीं है, वो चेक करना। तो मेजोरिटी पीपल यही नहीं कर पाते। तो सबसे पहला तो वो ज़रूरी है कि इंट्रोस्पेक्ट करना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, की वो चीज़ है कि नहीं है। सेकेंड चीज है कि रिजॉल्व करना, जिसको हिंदी में बोलते हैं दृढ़ संकल्प। उस चीज को रिजॉल्व करना कि मुझे ये चेंज करना है, आई वॉन्ट टू चेंज इट, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू मी। थर्ड स्टेज होता है कि उस चेंज को करने के लिए आपने एफर्ट्स लगाने चालू किए।
कि ये अटेम्प्ट करूंगा, आई चेंज द वे आई थिंक, मैं जैसा सोच रहा हूँ, जहाँ बैठ रहा हूँ, जिस सिस्टम में हूँ, जिन एनवायरनमेंट में हूँ, वो चेंज करूंगा। हैबिट स्टैकिंग होती है एक चीज। हैबिट स्टैकिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपको मीठा खाने की बहुत ज्यादा आदत है, और मीठा खा के वजन बढ़ गया है, और बार बार मीठा खाते जा रहे हैं, और गिल्ट भी हो रहा है। तो उसमें क्या करते हैं कि आप उसके लिए हैबिट स्टैक कर दो, कि वो पता चल गया कि 10 बजे के आसपास मीठा खाने का मन करेगा, तो 10 बजे के आसपास मेक श्योर यू आर डूइंग समथिंग एल्स, कुछ और कर रहे हैं, किसी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी में बिजी हैं, तो एटलीस्ट वो 10 बजे वाली क्रेविंग खत्म हो गई। या फिर किसी को ऐसा है कि बहुत ज्यादा वजन बढ़ गया है, उनको वेट लॉस करना है, पर बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही है, तो जूतों को अपने बेड के पास ही रख लो ना, सुबह सुबह उठ के जूते पहन के निकल गए। तो ऐसे करके लोग अलग अलग तरीके से हैबिट स्टैकिंग करते हैं, और बहुत कम लोग जो होते हैं वो चेंज महसूस कर पाते हैं, बिकॉज चेंज को महसूस करने के लिए आपको कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। आपको कंसिस्टेंटली उस चीज पे काम करना बहुत जरूरी है, तभी आपको चेंज महसूस होता है। तो इस चीज में, गिल्ट फ्री माइंड में जो सबसे बड़ा बैरियर आता है, दैट बिगेस्ट बैरियर इज इमोशंस। इमोशंस जो होता है वो आपको खा जाता है। आपको मतलब जनरली जिनके बहुत कड़े संस्कार हैं, उनको ये इमोशंस बहुत परेशान करते हैं। तो क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक बहुत सूक्ष्म, बहुत सटल हैबिट है, जिसको आप कैच नहीं कर पा रहे हैं, और बार बार होता चला जा रहा है, आप बार बार गड़बड़ कर रहे हो। तो क्या होता है कि आपको एक हताशा होती है, अंदर से लगता है कि ये क्यों नहीं चेंज हो रहा है, मैं चेंज कर पाऊंगा कि नहीं। आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो, कंफ्यूजन में आ जाते हो, आपको लगने लग जाता है कि ये नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है, उस चीज से बचने के लिए हमेशा बोला जाता है, ऑलवेज गो विद द रीजनिंग राउट। जो आप समझ सकते हो, आप नोट कर सकते हो कि ये चीजें जो हैं, ये मैं वही चीज वापस रिपीट कर रहा हूँ, आई ट्राई टू चेंज दीज थिंग्स, ये चीजें मैं ऐसे ही सोचता हूँ, इस सोच को बदलूंगा। तो उससे हताश होने के बजाय एनालाइज करके उसको चेंज करना, ये बहुत जरूरी है। तो इसके लिए ही हम लोगों को न्यूरल रिवायरिंग जैसे सिखाई गई है, हैबिट क्रिएशन सिखाई जाती है, उसी तरह से एक तरीका है मेडिटेशन या फिर दृढ़ संकल्प के थ्रू इसको सॉल्व करना। तो इसके लिए मेडिटेशन जो होता है, ये बहुत ही प्रूवन मेथड है। और मेडिटेशन को करने के लिए भी समझ की बहुत ज़्यादा, अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आइए इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, राइट। तो ये हमने सेल्फी ली है अपने साइकी की। साइकी माना आपका जो सबकॉन्शियस है, उसकी हमने एक सेल्फी निकाली है। तो सेल्फी में, आप इस सेल्फी में दो चीजें देख रहे हैं मेन। पहला तो है ये रेड डॉट्स, ये रेड डॉट्स विच आर योर फॉल्स आइडेंटिटीज, जिसको हम बोलते हैं, हम और एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन देर इज अ ग्रीन डॉट विच इज योर ट्रू आइडेंटिटी। तो छोटा बच्चा जब हुआ, तो छोटे बच्चे में कुछ कुछ संस्कार हुए, उसमें अच्छे संस्कार थे, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे से उसको बहुत क्लीन बुद्धि, क्लियर बुद्धि था। धीरे धीरे उसने देख देख कर कुछ कुछ अपने, उसके संस्कार इनकलकेट होते गए, कुछ समाज के द्वारा, कुछ एक्सटर्नल, कुछ उसके पेरेंट्स को देखा उसने, कुछ उसने अपने दोस्तों को देखा। ऐसे करते करते उसको कई बार लेजीनेस आई, कई बार उसको वो लायर, जो अभी आपको बताया ना, झूठ बोलने का एक संस्कार डेवलप हो गया। तो संस्कार डेवलप होने के बाद ऐसा करके उसको लालच का संस्कार डेवलप हुआ, और एक और ऐसा अलग टाइप का संस्कार भी डेवलप हुआ, जिसको उसको ईगो हो गया कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, आई एम अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। ठीक है। उसको ऐसे अलग अलग ख्याल आने लग गए, वो इमेजिन करता था कि ये मेरे को क्यों बोल रहे हैं ऐसा, मैं तो बहुत ही सो एंड सो हूँ। उसके माइंड में एक मेंटल इमेज है कि मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं आई एम अ वेरी स्टूडियस बॉय, या फिर मेरे बहुत अच्छे नंबर आते हैं, जो भी है, इट कैन बी एनीथिंग, राइट। तो ये जो हमारी ट्रू आइडेंटिटी होती है ना, ये सबके लिए कांस्टेंट होती है, ये समझना बहुत जरूरी है। सोल की जो आइडेंटिटी है, इट इज ऑफ पीस, लव, बेनेवलेंस एंड ट्रूथ।
पीछे से बैकग्राउंड नॉइस तो नहीं आ रही है ना? बहुत शोर हो रहा है। नो नो नो, कुछ नहीं आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू। तो ये जो ट्रू आइडेंटिटी है, अम, ये सभी की ऑलमोस्ट सिमिलर रहती है, राइट? तो ये जो ट्रू आइडेंटिटी में हम लोगों का जो इनिशियल एक थॉट्स होते हैं, वो बहुत अलाइंड होते हैं और बहुत अच्छे यथार्थ होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है, मन के अंदर बहुत सिक्योरिटी होती है। बट धीरे धीरे कुछ कुछ संस्कार डेवलप होते जाते हैं। अब क्या होता है, हाउ डज गिल्ट कम इनटू पिक्चर यहाँ पर? जब जब हम इस ट्रू आइडेंटिटी से हट के कोई काम करते हैं, इस सही आइडेंटिटी से हट के, मान लीजिए लेजीनेस के प्रति आपका इंक्लिनेशन ज्यादा है, तो इसको करके वो कहीं ना कहीं गिल्ट भी डेवलप होता है। किसी में ईगो बहुत ज्यादा है, तो वो इसके कारण कुछ गलत बोल देगा किसी को, और उस कारण फिर गिल्ट डेवलप हो जाएगा। किसी में ग्रीड बहुत ज्यादा है, तो अमेजोन की सेल पे अपनी पूरी सैलरी निकाल लेता है, और फिर उसको लगता है कि ये तो गड़बड़ हो गया, गिल्टी फील होता है उसको। एंड सेम गोज विद अदर थिंग्स लाइक झूठ बोलना, ये सब करना। तो क्या होता है, इसको तोड़ने के दो तरीके हैं। इन छोटे छोटे जो रेड कलर के डॉट्स हैं ना, स्मॉल आइज जिसको बोलते हैं, फॉल्स आइडेंटिटीज को तोड़ने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो अभी आपको पहले समझाया, कि इनको पहचान लीजिए कि ये है, और इसको चेंज करने की कोशिश करिए। झूठ बोलता हूं मैं, मेरे अंदर ये संस्कार हैं, तो इसको पकड़ के ठीक करिए। और दूसरा है कि ये जो ट्रू आइडेंटिटी है, जो सत्य है, इस पे प्रकाश हो, इस पे सारा अटेंशन हो। तो क्या बोलते हैं कि जैसे एक बहुत अच्छी किताब में एक बात पढ़ी थी, उसमें ये लिखा था कि सिगरेट वाले जो होते हैं, सिगरेट का जो एडिक्शन होता है, उसमें जो व्यक्ति होता है वो सिगरेट पीता है, उसका छोड़ने का मन करता है, पर वो छोड़ नहीं पाता उस आदत को। उसको बार बार गिल्टी फील होता रहता है कि मेरे लंग्स जो हैं वो खराब हो रहे हैं, आई शुड नॉट डू इट। और वो अपने घर पे भी बोल के जाता है कि मैं नहीं पीता हूँ, नहीं पीता हूँ। पर वाइफ को भी पता है, बच्चों को भी पता है कि ये सिगरेट पीते हैं बाहर जाके, है ना? तो उसको मन में तो ये संकल्प आता जा रहा है, उसको खा रहा है कहीं ना कहीं कि मैं अपने बच्चों से झूठ बोल रहा हूँ, मैं सबसे झूठ बोल रहा हूँ। एंड इनसाइड उसको ये लगता जा रहा है। तो उसको सिगरेट छुड़ाने के लिए उसको ये नहीं बोलते कि मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा अब से। वो अगर बोलेंगे तो वो काम नहीं करेगा। मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, ऐसे करके वो काम नहीं करता। ये बहुत कड़ा है ना संस्कार, तो उसको वो बुद्धि में बैठता नहीं है। लेकिन अगर वो आइडेंटिटी शिफ्ट कर दे अपनी, बोलते कि मैं सिगरेट पीता ही नहीं हूं, आई डोंट डू इट, उसने बुद्धि में एक आइडेंटिटी शिफ्ट कर दिया, अपनी सही आइडेंटिटी की तरफ चला गया वो, कि मैं ये सब करता ही नहीं हूं। तो क्या हुआ कि ये सारी जो चीजें थी ना, ये यूज होना कम हो गई और ट्रू आइडेंटिटी यूज होना ज्यादा हो गई। और उससे क्या हुआ कि उसका जो गिल्ट का स्पैन था वो कम होता चला गया। वो कम बार ऐसे लम्हों में था जिसमें वो गिल्टी फील कर रहा था। तो ऐसे कर करके उसने बाय प्रैक्टिस वो करता चला गया, करता चला गया। एंड इवेंचुअली उसने, बीच बीच में रिलैप्सेस होते थे, कई बार उसको ऐसा मन करता था और कि फूक लेते हैं या ये कर लेते हैं। लेकिन उसमें उसने ध्यान ना देकर अपनी सत्य आइडेंटिटी पे काम किया कि मैं ऐसा हूं ही नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूं, तो मैं ये सब क्यों इस पे ध्यान दे रहा हूँ। तो ये ट्रू आइडेंटिटी पे काम करने से, इस ट्रू आइडेंटिटी को समझने से, ये जो साइकिल है, शेम की साइकिल, ये टूट जाती है। तो इसको हम स्पिरिचुअलिटी में कहते हैं सोल कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी। तो ये सोल कॉन्शियसनेस जो है, ये हमारे गिल्ट की साइकिल को तोड़ने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि हमारी आदतें टूटती चली जाती हैं। और जो पास्ट होता है दोस्तों, उस पास्ट को हमको हमेशा फुल स्टॉप लगाना है। पास्ट का कंट्रोल अपने प्रेजेंट पे होने नहीं देना है। जिसका पास्ट उसको कंट्रोल करता है, वो वास्तव में गुलाम का जीवन जीता है। क्योंकि पास्ट तो हो गया, पास्ट तो खत्म हो गया।
अब उसके बारे में सोच सोच कर मतलब आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, उसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले तो गिल्ट कॉन्शियसनेस को खत्म करने के लिए पास्ट पे फुल स्टॉप लगाना है। फुल स्टॉप लगाते लगाते और ट्रू आइडेंटिटी को बढ़ाते बढ़ाते ये सारी जो चीजें हैं, और इससे और भी बेनिफिट्स होते हैं, ना केवल गिल्ट, आपके जितने भी आ, उल्टे सीधी आदतें हैं वो सब सुधरती चली जाएंगी, और पता भी नहीं लगता है, और बहुत हल्कापन भी फील होता है। इट्स वेरी गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, राइट? तो दिस इज द मेथड दैट ब्रेक्स द साइकिल ऑफ शेम। जो शेम का साइकिल चल रहा था एक, ये होता जा रहा है होता जा रहा है, बार बार बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है बुरा लग रहा है, वो टूट गया, राइट? अभी हमको एक प्रैक्टिस में आना है। ये प्रैक्टिस क्या है, ये आप लोग भी हमारे साथ कोशिश करके करिए। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है, और इसी को ही हम मेडिटेशन क्लब से जुड़े हुए हैं, तो हम देख रहे थे कौन कौन जुड़ा हुआ है। ओके, तो मेडिटेशन क्लब से जुड़े हुए हैं तो ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। और देखिए, सबके भाग्य में नहीं होता है इतने अच्छे इनिशिएटिव का पार्ट बनना। आप लोगों को बहुत ही इजी वे में ये मिल गया है, और बधाई हो सक्षम भाई को जिन्होंने ये इनिशिएटिव लेके ये बहुत अच्छे से उसको प्लान्ड वे में आप लोगों को भी इनवाइट करते हैं। एंड इफ यू थिंक अबाउट इट, कोई क्यों ही करेगा? क्या मिलेगा इसको करने से? उसको क्या पड़ी है कि आप लोग कुछ भी करें? बट टू टेक एन इनिशिएटिव और उस चीज को आगे बढ़ाना, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। और आप लोगों को भी इसका बहुत फायदा लेना चाहिए, उस चीज को, उस समय को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करके। तो लेट्स प्रैक्टिस आर्ट ऑफ स्टिलनेस। ठीक है, इसके लिए आपको कोई भी प्री रिक्विजिट नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको बचपन में सीखी हुई होनी चाहिए, या फिर कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट्स वेरी इजी। तो ये जो स्टिलनेस है, इससे क्या होता है, संस्कार परिवर्तन जो बोलते हैं ना, हैबिट चेंज, उसके लिए दो बातों की बहुत ज्यादा जरूरत है। सबसे पहली बात है एकाग्रता, विच इज फोकस। फोकस अगर आपका नहीं है तो कोई भी चेंज आपकी लाइफ में नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है। इट्स एन अप हिल वॉक। फोकस जिसका है वो काम को जल्दी कर लेता है, आसानी से कर लेता है, इजी वे में कर लेता है। फोकस जब होता है तो उसके साथ साथ रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता आती है। तो ये दृढ़ता क्या होती है? ये दृढ़ता ही परिवर्तन का आधार है। परिवर्तन माना चेंज। तो दृढ़ता, लोग बोलते हैं ना कि मैं बहुत ऐसे सोचा कि करूंगा करूंगा लेकिन हुआ नहीं, उसका कारण ये है कि फोकस से वो थॉट नहीं किया हुआ था कभी भी। तो आज एक प्रैक्टिस करते हैं सभी लोग। थोड़ा सा कमर सीधी करके बैठ जाएंगे, जहां पे भी आप बैठे हैं, लेटे हुए हैं तो भी चलेगा, कोई बात नहीं। पर इस प्रैक्टिस में आप महसूस करेंगे, ना कि विजुअलाइज। दोनों में बहुत फर्क है। एक होता है रियलाइज, एक होता है विजुअलाइज। तो विजुअलाइजेशन में आप केवल चीजों को देखते हैं, लेकिन रियलाइजेशन में वो महसूस होता है। जैसे कि अगर आप ऑफिस में बैठे हैं और आपसे किसी ने पूछा कि आपको अपने घर का जो किचन है, उसमें जब आप खड़े होते हो तो वो आपको याद आता है, वो कैसे फील होता है, तो आप फील कर लोगे क्योंकि आपने वो अनुभव किया है। ऐसे ही हमको भी ये स्टिलनेस का अनुभव करना है, ताकि हम एकाग्र हो सकें, ताकि हम में ये दृढ़ता आ सके, एंड सो दैट वी कैन यूज द पावर ऑफ थॉट्स टू चेंज। ठीक है, तो अभी क्या करना है, एकाग्रता के साथ एकदम अपने जो जो भी आप अपने आप को देखना चाहते हैं, जैसा भी देखना चाहते हैं, वैसा एकाग्रता के साथ उस चीज को आप फील करिए कि जैसा जो भी संस्कार था वो तो था, उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अभी जो संस्कार जैसा चाहिए उस चीज पर
उस चीज को महसूस करने की पूरी पूरी आप उस पे फोकस करके उस स्वरूप में उन एक्शंस को अपनी बुद्धि में देखिए और फील करिए, उसको महसूस करिए, उस स्टिलनेस को। एक बार और रिपीट करेंगे प्रदीप भाई जी यस, टास्क को। यस। जो भी आप, जो भी एम है, जो भी एम ऑब्जेक्टिव है, जिस संस्कार, जो भी संस्कार, जो भी हैबिट दुख दे रही है, उसका तो आप कुछ नहीं कर सकते, उसको साइड में रख दीजिए, उसके बारे में सोचने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन उसका जो ऑपोजिट है, जो कि आप बनना चाह रहे हैं, जैसा आप अपने आप को देख रहे हैं, जैसा होना चाहिए, आइडियल बिहेवियर। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, किसी का आलस्य का संस्कार है, उसको बहुत गिल्ट होता है कि मैं सुबह नहीं उठ पाता हूँ, समय निकल जाता है। तो अपने आप को ऐसा देखना है कि सुबह जब उठ रहे हैं तो कैसा फील हो रहा है, उस पे फोकस करिए। सुबह जब 4 बजे उठे हैं तो कैसा फील हो रहा है, सुबह उठे हैं, आप देख रहे हैं बहुत अच्छा लग रहा है, हल्का है, वातावरण में शांति है, वो महसूस करिए, उस चीज, उस एक्सपीरियंस में आइए। तो इट कैन बी एनीथिंग, जो भी आपको चीज परेशान कर रही थी बहुत दिनों से, उसका ऑपोजिट लेकर उस फोकस में, उस एकाग्रता में आइए, उस चीज को लेकर। जब आप उस चीज को, उसके ऑपोजिट चीज को लेकर एकाग्रता में आते हैं, जैसा मैं बनना चाह रहा हूँ, जैसा अपने आप को देखना चाह रहा हूँ, उस चीज को सकारात्मक लाइट देते हैं, उस पे दृढ़ता रहती है कि ऐसा बन जाएंगे, बनना ही है, और ऐसा महसूस हो रहा है कि यही है। तो वो जो संस्कार जो परेशान कर रहा था, वो ऑटोमेटिक मर्ज होता चला जाता है। जो नया संस्कार आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो चीज इमर्ज हो रही है, वो बाहर आ रही है, अब वो चीज रियलिटी में बनती चली जाती है। इसको बोलते हैं एकाग्रता और दृढ़ता से परिवर्तन। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, इसके लिए आपको कोई कोर्स नहीं करना है, कोई अलग से टाइम नहीं निकालना है। आप जब भी थोड़ा बहुत अकेले हों या फिर फ्री हों, तो इसको प्रैक्टिस में लेके आए, इसको अनुभव में लेके आए कि कैसे मैं अपना, देखिए, इसी चीज को फॉरेन में लोग कई कई तरीके से भी करते हैं, भारत में भी करते हैं। कुछ लोग इसका विजन बोर्ड बना के रखते हैं, कुछ लोग इसको नाम दे देते हैं मैनिफेस्टेशन। लेकिन जब तक इस चीज को समझेंगे नहीं ना कि ये काम क्यों कर रहा है, तब तक ये काम आपको हो सकता है करे, हो सकता है ना करे। तो इसके काम करने का तरीका, इसके काम करने का रीजन यही है कि आप अपनी ट्रू आइडेंटिटी में टिक रहे हैं। दैट इज वाई इट्स वर्किंग। ये कोई जादू टोना नहीं है, या फिर कोई विजुअलाइजेशन नहीं है कि कुछ ऐसा संकल्प में इमेजिन किए जा रहे हैं कि मैं ऐसा पहाड़ में जाऊंगा, यहाँ उड़ूंगा, वहां उड़ूंगा। नहीं, ये आपकी रियलिटी ही है। अच्छा बनना आपकी रियलिटी है। उस रियलिटी में जितना आप उसको फील करेंगे, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उससे मैटर नहीं करता। लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सभी का हक है और सभी की रियलिटी है आइडियली। तो उस चीज को जितना महसूस करेंगे, उतना ये जो अवचेतन मन के जितने भी विकार हैं, ये सब दबते चले जाएंगे, हटते चले जाएंगे, वॉश हो जाएंगे, बार बार नहीं आएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो इस चीज की प्रैक्टिस आप सभी लोग अपने फ्री टाइम में जरूर करें। और किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ ऐड करना है, तो वो अभी कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज व्हाट आई प्रिपेयर्ड। एंड ये एक चीज, एक छोटा सा कोट था अबाउट द पास्ट। पुट अ फुल स्टॉप टू द पास्ट, टुडे इज अ न्यू बिगनिंग। जो हो गया उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, उसको सोच सोच के गिल्टी फील ना करें। आज को सुधारें, आज को एनालिटिकल माइंड से सुधारें। और ये सब कुछ जो भी आपको दुख दे रहा है,
ये सारा कुछ निकल जाता है, हट जाता है, और पन्ना जो है वो एकदम साफ हो जाता है। पर फोकस आज नई शुरुआत पे रखना है, ना कि पास्ट पे, और चेक और चेंज करना है। जी, थैंक यू। थैंक यू प्रतीक भाई जी, वेरी वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी डेप्थफुल आई मस्ट से। काफ़ी गहराई से आपने बताया कि कैसे गिल्ट मैकेनिज्म काम करता है, गिल्ट और शेम में क्या डिफरेंस है, एंड हाउ वी कैन ब्रेक दैट चेन by practicing our true identity consciousness. So thank you so much. With this, we'll now open the forum for Q&A for the audience. जिनको भी कुछ प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं. Okay, so what statements can we say? There is one question in the chat box. Pratik bhai, if you can see that. Yeah. Thank you. I don't know what's the name here. SS. So, what statements can we say to self in moments of guilt to separate ourselves from that event? For example, if something happened, automatic thought, how can I be so irresponsible? I can't be so irresponsible. See, that's what we mentioned here. जो भी ये संकल्प है, ये इमोशंस के बेसिस पे हो रहे हैं. हाउ कैन आई बी सो इररिस्पॉन्सिबल, आई कैन नॉट बी सो इररिस्पॉन्सिबल. ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि तुरंत आप इमोशंस में चले गए. उस चीज को, वो क्यों हुआ, उसको अच्छी रीति एनालाइज नहीं किया. तो जब भी ये ऑटोमेटिक जो थॉट आते हैं ना, इसका कारण ही ये होता है कि पूरे दिन में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि ये ऑटोमेटिक थॉट ट्रिगर कर रहा है. तो उस चीज को सबसे पहले बंद करिए. घड़ा जहां से टूटा हुआ है, उस पे ब्लॉक लगाइए, नहीं तो वो चीज, वो पानी बहता रहेगा. और देखिए, निश्चिंत रहिए, कभी भी पैनिक मोड से गिल्ट को नहीं जीता जा सकता. यह संस्कार नहीं बदलता. पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है. चीजें ठीक हो जाती हैं, पर उसके लिए काम करना है, उसको चेक करके चेंज करना है. ऑलवेज भी एनालिटिकल रीजनिंग में होना चाहिए, ना कि एक इमोशनल अप्रोच होनी चाहिए उसकी. दैट्स व्हाट आई वुड से. सर, प्रियंका जी का क्वेश्चन है, मैं जो एक्शन नहीं करना चाहती हूँ वो हो जाता है, फिर मुझे गिल्टी फील होता है, फिर मैं सोचती रहती हूँ, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल पाता है. अच्छा, जस्ट जस्ट टू ऐड, आप सब अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैंने वो ऑप्शन इनेबल कर दिया है. तो अगर आप अनम्यूट करके पूछेंगे तो ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन पूछ पाएंगे. यस. तो यस. यस. सो सो सी, यहाँ पे दो चीजें हैं. पहला इसका पार्ट है कि जो आप नहीं करना चाहते हैं वो हो रहा है. तो इसमें वापस से अगर उस स्लाइड में हम जाएंगे, इफ आई कैन शेयर दैट अगेन, तो इसमें क्या होता है ना कि जो हम नहीं करना चाहते हैं, अगर वो चीज हो रही है, इट्स नॉट गोइंग बैक. हम्म. तो ये वाला केस है कि ये पावर टू चेंज जो है ना, ये नहीं है. मतलब कम है, नहीं तो नहीं बोलेंगे, पर कम है. तो इस पे काम करना है कि ये पावर टू चेंज कैसे आए. तो इसके लिए वो जो आपको अभ्यास बताया ना, उसको आप रेगुलर करिए. कि जो सोल कॉन्शियसनेस, जो स्टेट ऑफ माइंड है, उस पे बहुत फोकस करना है कि मैं एज अ सोल बहुत ही अच्छी हूँ, बहुत प्योर हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ. जैसे जैसे ये अफर्मेशंस आते हैं ना, क्योंकि यही सच्चाई है, तो वो ऑटोमेटिक इम्प्रूव हो जाता है. अच्छा, नाउ द सेकेंड पार्ट इज कि वो जो गिल्टी होती है, वो बार बार सोचने में आती है, होता है. आई आई अग्री, होता है. पर इसीलिए हमको इस चीज को इमोशंस में नहीं आना है. इमोशंस में जब आप आते हैं, उस चीज को अपने ईगो पे ले लेते हैं कि मैं, जिसको ऐसा ऐसा समझते हैं, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा करती हूँ, तो वो जरूर गिल्टी फील होता है, होने लग जाता है. तो उस भान में, उस थॉट्स में नहीं आना है. अपने आप को प्रिवेंट करके रखना है, इमोशंस में नहीं आना है. उस चीज को चेक करके चेंज करने की कोशिश करनी है, और हो जाएगा. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं हूं ही ऐसा, तो एक तरह से वो
पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया, तो उस चीज को चेंज कर दीजिए, उसको कन्वर्ट करिए। यस, योर मिस्टेक्स आर नॉट योर आइडेंटिटी। एब्सोल्युटली। बेसिकली ये मैंने देखा है, यूजली खुद के साथ भी फील किया है कि हम एक बहुत छोटे से अ, अपने पर्सनालिटी के पार्ट को, जो कि हमारी वीकनेस है, जो हम कोई मिस्टेक्स कभी कभी करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा सुपर इम्पोज करते हैं कि यस। यू नो वी वी आर नॉट गुड, जबकि वो एक बहुत छोटा सा पार्ट है। वी हैव सो मेनी गुड थिंग्स। हम्म। तो अगर हम मिस्टेक्स को अपनी आइडेंटिटी बनाएंगे तो गिल्ट ज़्यादा होगा। यस। यस, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। राय का पहाड़ नहीं बनाना है, छोटी चीज को पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं बनाना है, उसको ठीक है, हो गया, उसको छोटा ही रखना है। बहुत ही अच्छा पॉइंट है ये। यस। एनी अदर क्वेश्चंस? अच्छा, इसमें भाई जी मेरा एक क्वेश्चन है। आपने उस स्लाइड में बताया था इमोशंस ओवर रीजनिंग, तो अ, रीजनिंग ओवर इमोशंस। हाँ सॉरी, ये कुछ एक और चैट बॉक्स में कंटिन्यूड क्वेश्चन है तो मेरा ध्यान उधर गया। करते हैं, but वो तो हैबिट में आ गया। कैन यू सी दैट चैट बॉक्स? या या सर को, अच्छा, कोशिश करते हैं, बट वो तो हैबिट में आ गया। यस। तो इसमें दो आइडेंटिटीज हैं। पहली आइडेंटिटी है जो आइडियल है, जैसा आप इमोशन पर भी कंट्रोल नहीं हो पाता है, इट्स ओके okay। उस पे आपका, देखिए, इमोशंस को कभी भी रोक, इमोशंस और थॉट्स ऐसी चीज हैं जिसको सप्रेस नहीं करना है, उसको डाइवर्ज करना है। उस जो चीज आप चाहते हो उस पे फोकस करिए, जो चीज बनना चाहते हैं उस पे ज्यादा फोकस रखिए, ना कि उसमें जो चीज आ रही है। समझ रहे हैं? जैसे समुद्र क्या होता है, समुद्र में आप कचरा डालेंगे तो वो कचरे को समा के वापस जब लहरें आती हैं तो वो पानी लेके आता है अपने साथ। वो जो कचरा होता है वो समा जाता है, तो उसका, समुद्र का सारा फोकस जो होता है वो पानी पे होता है, कचरे पे ध्यान नहीं देता वो। तो आपका भी ये जो माइंड में जो छोटे वाले आईज है ना, जो कि दुख दे रहे हैं, जो कि परेशान कर, इस पे ध्यान मत दो, इसको साइड में रखो 1 मिनट के लिए। जो कि अच्छी चीज है उसको आप बढ़ाने पे कोशिश करो, उस पे फोकस डालने की कोशिश करो। वो चीजों को परेशान नहीं, उससे अफेक्ट नहीं होना है, उस चीज का इमोशंस नहीं आने देने हैं। यस, ओके। देयर इज वन मोर क्वेश्चन फ्रॉम सोनिया। जो चीज करना चाहते हैं वो हो नहीं पाती है, सोचते रहते हैं बस, प्रोक्रास्टिनेशन। यस, वेरी कॉमन, वेरी कॉमन प्रोक्रास्टिनेशन। लेजीनेस का एक एक्सटेंडेड स्वरूप बनता जा रहा है। तो इसमें देखिए इसके लिए भी वही सेम ही, हर मर्ज की एक ही दवा है। जो चीजें प्रोक्रेस्टिनेशन, क्या होता है कि आपका जो ये संस्कार बना है ना लेजीनेस का, इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ये क्यों आ रहा है। जरूर बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें। अगर आपका, कुछ लोगों को क्या होता है, जैसे हम एक एग्जांपल देंगे कि उनका जो है, वो करना चाह रहे हैं कुछ, पर वो हो नहीं रहा है, एंड देन दे आर रिग्रेटिंग इट। पर वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वो जो सारा समय है वो, उनका स्क्रीन टाइम, फोन पे स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे का ही है। तो 6 से 7 घंटा अपने अपने सारा मेंटल फोकस फोन पे लगा दिया है, एंड बाकी का समय जो बचा उसमें आप लेजी फील करोगे, राइट? तो एक्टिवनेस लाने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि रूटीन में क्या कर रहे हैं हम, वो समय जा कहाँ रहा है। और दूसरी बात, कि ये जो फीलिंग है कि हम, मतलब उस चीज को करना चाह रहे हैं, तो उसको करने के लिए कुछ स्टेप्स भी हैं, उस मोड में भी आना पड़ता है। कई बार किसी का जैसे मन कर रहा है कि एक्सरसाइज करनी है, लेकिन बस वो हो नहीं रहा है, किसी ना किसी तरीके से सोचे जा रहे हैं कि जिम ज्वाइन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो उस चीज को इजी बनाने के लिए आप कुछ कुछ ऐसे चीजें कर सकते हो। आप जिम का सब्सक्रिप्शन ले लो, आपने इन्वेस्ट कर दिया, अब तो आप जाओगे ही जाओगे वहां पे। आपने शूज अपने रूम के पास रख दिए, आपने सारे ड्रेस अपना रेडी करके रख दिया जिम का। अब आप सो के उठे, आपने फर्स्ट थिंग यू डिड, आपने वो कपड़े पहने निकल लिए। तो मेक इट इजी फॉर योर हैबिट्स टू मैनिफेस्ट। वो हैबिट्स को आप इजी करो, उस पे बैरियर्स मत आने दो। ये भी एक चीज है।
अगेन इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, स्पेशली ऑन द लेजीनेस पार्ट। आई थिंक अगेन दिस इज अ फॉल्स आइडेंटिटी जो लोगों ने मतलब एक्सेप्ट कर रखी है, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं हम लेजी हैं, आई हैव सीन दो स्टूडेंट्स एग्जाम टाइम पे वो लास्ट मोमेंट पे सब कुछ छोड़ के पढ़ते हैं, यस, और यू नो दे स्टडी 18 आवर्स एंड देन दे गिव एग्जाम। अगर यस, वो लेजी होते तो हमेशा लेजी होते हैं, यस, है ना? यस। तो डेफिनेटली वो लेजी तो नहीं है। इट्स लाइक फॉर they have accepted that they are lazy and that is actually driving them, but if they seen themselves, उन्होंने खुद ने ऐसे एक्ट करे हैं जो बिल्कुल भी शो नहीं करता है कि they are lazy. So ट्रू। again, the it is not the right identity जो यस, लोगों के दिमाग में है। एंड आई बिल्कुल। थिंक जो आपने जो ट्रू आइडेंटिटी वाली बात बताई, अगर वो ध्यान में रहेंगी, तो जितने भी सारे फॉल्स आइडेंटिटी हमने अपने ऊपर इम्पोज कर रखी है, दैट आई एम नॉट गुड, आई एम ए प्रोकास्टिनेटर और समथिंग, तब तक वो हमें गिल्ट फील कराएंगे, बिकॉज वी विल थिंक कि दिस इज अवर परफेक्ट सेल्फ जिसने गलती करी है। लेकिन परफेक्ट सेल्फ तो हमारा जो एक्चुअल ट्रू आइडेंटिटी वो है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली वंडरफुल। बहुत ही अच्छा रिलेट किया। ये एक काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है कि जो नहीं करना चाहिए फिर भी वो किए जा रहे हैं, जबकि समझ है कि ये रॉन्ग है। तो क्या इसमें पास्ट कर्मा का भी रोल हो सकता है? तो इसको, पास्ट कर्मा का रोल केवल इतना था कि वो संस्कार आज दिख रहा है, चेंज नहीं कर पा रहे हैं, उसमें पास्ट कर्मा का रोल नहीं है। राइट? उसमें हमारा आज, हमारे हाथ में आज है। हम आज उस चीज पे काम कर सकते हैं। हम आज उस चीज को संकल्प दे सकते हैं कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है और इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है। राइट? हम लोग जो स्पिरिचुअल स्टडीज पढ़ते हैं उसमें डेली कुछ कुछ बातें आती हैं, जिसमें से कुछ करते हैं कुछ नहीं करते हैं। तो जो चीज नहीं करते हैं वो ऐसा नहीं है कर नहीं सकते हैं, जस्ट उस पर अटेंशन नहीं है। तो हमारा जो मेंटल पावर है, देखिए जो चीज हो गई उस पे तो कोई हमारा हैंड नहीं लग सकता, लेकिन जो चीज आज हाथ में है उस पे हमको काम करना है। तो जो हो गया उस पे ध्यान नहीं देना है, पास्ट कर्मा तो हो गया अभी, उसका तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आज जो उसका आया है उसको हम कैसे सॉल्व करें, वो कंस्ट्रक्टिव थिंकिंग, वो रिजॉल्व, दृढ़ संकल्प जो बात की, वो एकाग्रता चाहिए उसको चेंज करने के लिए। जितनी ज्यादा एकाग्रता होगी उतना वो चेंज होगा। अच्छा, अगर हमसे कोई गलती हो जाती है तो बाबा उसका 100 गुना दंड देंगे, ऐसा जो गिल्ट रहता है उसको कैसे ठीक करें? प्लीज गिव मी सॉल्यूशन। तो ये आ, लाखों दिलों की कहानी है, ऐसा कहेंगे कि ये जो 100 गुना दंड वाली बात होती है, जो स्पिरिचुअल मॉडल जिसको बोलता है कि आपको जब नॉलेज है एंड स्टिल आप वो कर रहे हैं तो इसका आपको ज्यादा भुगतना पड़ेगा। राइट? विच इज ओके, गुड। पर हम वापस इसको वही उसी पॉइंट पे लेके जाएंगे जिससे स्टार्ट किया था, रीजनिंग ओवर इमोशंस। अभी जो गलत चीज बार बार हो रही है, अगर उसमें पैटर्न नहीं दिख रहा है तो मतलब अपनी तरफ से आपने सही एफर्ट नहीं किया है, अपनी तरफ से आपने सही लाइट, सही डायरेक्शनल थिंकिंग उस पर नहीं की है। आप उस चीज को चेंज करने की तो कोशिश नहीं कर रहे हो, और वो चीज हो रही है तो उसका बुरा और लग रहा है। राइट? एंड दिस इज नथिंग पर्सनल, ये एक जनरलाइज्ड वे में बता रहे हैं कि जो चीज गलत हो रही है उस पे, उसको चेंज करने पे फोकस ना रख के उस गलत चीज होने के बाद का जो रिजल्ट है उसके गिल्ट कॉन्शियसनेस पे व्यक्ति आ जाता है। तो जो बात बताई कि गलत काम करने से दंड मिलता है, ये तो एक एक नियम बताया कि गलत करोगे तो उसका रिजल्ट 100 टाइम्स मिलेगा क्योंकि यू नो द ट्रूथ। लेकिन ये विधान अलग चीज है, और जो कर्म हुए जा रहा है बार बार उसको रोकने के लिए जो एफर्ट है वो अलग है। उस चीज को देखना, उस पे लाइट डालना, वो क्यों हो रहा है उसको लिखिए, उसको लिखिए। गिल्ट में पढ़ने से आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ काम हुआ, बुरा लगा,
अभी जब बुरा लग रहा है जितने समय, उतने समय आप एनर्जी उस चीज को हटा के एनर्जी अगर उसको नोट कर लिए, क्यों हुआ बुरा, किस समय हुआ, क्यों गलत हो रहा है बार बार, हर दिन कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिससे वो थॉट दिमाग में चलता चला जा रहा है, उस पे स्टॉप लगाइए ना। और वो स्टॉप लगाएंगे तो ये एक्टिविटी भी रुक जाएगी, वो गिल्ट भी रुकेगा। होप दैट आंसर्स। एंड आई थिंक मिस्टेक्स को रिपीट ना करना भी एक अच्छा सोल्यूशन है, क्योंकि इट इज लाइक इट इज ह्यूमन दैट डू मिस्टेक्स। एंड जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात होती है, दिस जर्नी कैन नॉट बी कंप्लीट विदाउट मिस्टेक्स। सो देयर विल बी मिस्टेक्स, बट द the solution lies is not to repeat them. यस। एंड इसमें अपने को मोटिवेटेड रखना बहुत जरूरी है। कोई और आपको आके नहीं करेगा मोटिवेट। लोग, मेजोरिटी आप जिससे भी शेयर करेंगे, दे आर इन देयर ओन स्टेट ऑफ माइंड, दे वांट टू जज यू। तो वो जजिंग, तो देखिए आप, बैटरी वैसे ही डाउन है, उसको चार्ज करने के बजाय, उसको मोटिवेट करने के बजाय आप डिमोटिवेट होंगे, तो वो ठीक नहीं है। थोड़ा सा सहानुभूति भी रखनी बहुत जरूरी होती है कभी कभार। कोई बात नहीं, हो गया, इट्स नॉट योर फॉल्ट, संस्कार ऐसा है, उसको चेंज करेंगे। खुद ही मोटिवेट करिए इस यात्रा में खुद को, बहुत मोटिवेशन चाहिए। और लिखिए, लिखिए बैठ के कि ये हुआ, कोई बात नहीं, नया नया सवेरा, नई यात्रा, नया मैं, ठीक होगा और होके रहेगा। तो ऐसे मोटिवेट करने से, खुद को खुद का टीचर बनाने से बहुत जल्दी चेंज आता है। से ट्राइड एंड टेस्टेड, बिल्कुल। तो इसको करते रहिए यात्रा पे। एक और छोटी चीज मैं ऐड करूंगा कि द बिगेस्ट चेंजेस कम्स आफ्टर बिगेस्ट मिस्टेक्स। यस। मतलब ये भी देखा गया है कि जो बहुत बड़े परिवर्तन होते हैं संस्कारों में या जीवन में, वो बहुत बड़ी गलतियों के बाद ही होते हैं। तो आई थिंक वो भी एक पॉजिटिव चीज है कि मतलब जो हम मिस्टेक से सीख सकते हैं कि यस, नाउ फाइनली वी आर रेडी टू चेंज। एट द सेम टाइम, अगर कोई हमारे साथ में रितांशु भी है, रितांशु इज अ प्रोफेशनल काउंसलर। तो रितांशु अपनी डिटेल्स शेयर कर दीजिए आप मीटिंग चैट बॉक्स में। तो किसी को कोई पर्टिकुलर इशू पे बहुत ज़्यादा गिल्ट है, तो उसको वन ऑन वन एड्रेस करना है, तो आप रितांशु से काउंसलिंग ले सकते हैं। ठीक है। यस, एनी मोर क्वेश्चंस? और किसी का कोई प्रश्न है? हेलो, हम शांति। शांति। आ, आपका नाम बता के प्रश्न पूछिए आप। मैं नेम सिद्धेश। जी सिद्धेश। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि मैं कुछ चेंज करूँ, कुछ चेंज कर नहीं पा रहा हूँ। बहुत दिनों से आदत पड़ गई कि इसके लिए कैसे करना था। सुबह जल्दी उठ नहीं पा रहा हूँ, सुबह जल्दी अपने आदत को मजबूर हो गया, इसलिए कैसे करना था पूछा था। और ज्यादा वीडियो पड़ गया, सुबह मैं थोड़ा नहीं उठ पा रहा हूँ, मिडिल क्लास नहीं जा पा रहा हूँ, इसलिए बोला था। प्रतीक भाई, आप म्यूट पे हैं। आप म्यूट पे हैं। सॉरी। सिद्धेश हाय। देखिए, अगर कोई चीज नहीं हो पा रही है तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। जब हम परेशान होते हैं ना, तो उस प्रॉब्लम को अपनी ताकत दे देते हैं, वो प्रॉब्लम हम पे हावी हो जाती है। तो हमको, जैसे मुरली क्लास की बात की, तो बाबा हमको अभी, सक्षम भाई ने भी बताया कि हमको बताते हैं कि जब बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, तो सबसे पहला काम ये नहीं होता कि उसको जाके सॉल्व करो। सबसे पहला काम होता है कि उसको छोटा करो। कोई बात नहीं, इट्स ओके। पहले अपने इमोशनल जो माइंडसेट है उससे आप बाहर आए कि ये हो रहा है, कोई बात नहीं, अभी इसको ठीक कैसे करें। अगर सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहे हैं, तो धीरे 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 अपना टाइम जो है वो जल्दी करिए। गिल्ट में नहीं आना है। नहीं उठ पा रहे तो कोई बात नहीं, उस पर गिल्ट फील करने की कोई बात नहीं है। करोड़ों लोग हैं दुनिया में जो नहीं उठ पाते, पर उस पे गिल्ट फील करने की बात नहीं है। बात यह है कि उस पे काम कैसे किया जाए, सकारात्मक, पॉजिटिव थिंकिंग। हम्म। तो सुबह जल्दी नहीं उठा जा रहा है तो रात को आप चेक करो कि कब सो रहे हो, खाना कब खा रहे हो, खाना खाने का समय क्या है। आप शरीर को
ऐसा तो नहीं कि शरीर तो थका हुआ है, लेकिन फोन से या फिर इतनी सारी जो चीजें हैं, मीडिया बहुत ज्यादा है, तो उससे माइंड एक्टिव हो रहा है, इसलिए रात को नींद नहीं आ रही है, लेट सो रहे, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। अच्छा, ये तो केवल सोने का पार्ट हुआ। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि हम नहीं कर पाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि चीजों को लिखना बहुत अच्छा होता है। जब आप लिखते हैं तो आपको सॉल्यूशन समझ में आता है कि यहाँ पे मिस्टेक हुई। तो मिस्टेक जब हुई तो उसके लिए बुरा महसूस नहीं करना है, उसको चेंज करने का एफर्ट डालना है। जब हम बुरा महसूस करते हैं ना, तो अगेन वही गिल्ट वाली बात आती है, तो उसमें बहुत समय वेस्ट हो जाता है हमारा। हमको बहुत ऐसा लगता है कि ये कैसा हूँ, अपने से ही नफरत होने लग जाती है। तो सबसे पहले तो खुद को सहानुभूति, खुद का सबसे अच्छा साथी। दूसरा, जो एफर्ट है, जो भी आप कर रहे हैं उसको, चीजों को ठीक करने में एफर्ट लगाएं, ना कि उसके बारे में सोचने में कि हाय ये क्या हो गया। राइट। रितांशु भाई से काउंसलिंग की बात कर सकते हैं। यस। सिद्धेश भाई, आपको ये समझ में आया? समझ में, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के ओके, थैंक यू। और किसी का कोई प्रश्न है? या सो मेरा एक प्रश्न है लास्ट। सो प्रतीक भाई, आपने जो बात की थी रीजनिंग वर्सेस इमोशंस की, तो उसमें इमोशंस ज़्यादा डोमिनेट करते हैं यूजली, एंड देन एक वो बहुत इम्पल्सिव मोमेंट होता है जब आपके इमोशंस आपकी रीजनिंग को, मतलब रीजनिंग सही होते हुए भी, और आपको पता है, बट आपके इमोशंस इतने स्ट्रांग होते हैं कि आप जो सोच रहे होते हैं वो नहीं करते हैं। एंड आई थिंक इसको बोलते हैं विजडम को, क्या बोलते हैं, चीट करना, समथिंग लाइक दैट हम मान सकते हैं। और उसके बाद सबसे ज़्यादा गिल्ट आता है, चाहे वो कुछ खाने का हो जो हमें नहीं खाना था, या जो कुछ करने का हो जो हमें नहीं करना था। सो एनीथिंग, मतलब उस मोमेंट में, मतलब हम अपने आप को कुछ ऐसा बोल सकते हैं, एनी हैक, एनी टिप फॉर दैट मोमेंट, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि वो डिसोनेंस है, कि मैं इस चीज़ को फील तो कर पा रहा हूँ कि ये डिसोनेंस है, कि मेरी बुद्धि कुछ और कह रही है और मेरे इमोशंस कहीं और जा रहे हैं। तो वहाँ पे कोई हैक बता सकते हैं आप, जो कि मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट से हमको बाहर निकाले और हम रीजनिंग के साथ ज़्यादा जाएं? आ, देखिए, इसमें दो चीजें हैं। पहले तो ये जो इमोशंस का जो बहाव होता है ना, इसको रोकने के लिए तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका है कि हाँ, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन करते करते आप जब स्वयं की चेकिंग करोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि अभी क्या फील होने वाला है। राइट। तो उसकी जब एक फैमिलियरिटी रहती है कि इस लेवल का तूफान आने वाला है, तो आप जो दरवाजा पकड़ते हो वो भी फिर टाइट पकड़ते हो कि नहीं, ये महसूस नहीं होने देंगे, दृढ़ता बढ़ती है। राइट, सहन शक्ति जिसको बोला जाता है। दूसरा होता है कि मूड शिफ्टर्स बहुत सारे होते हैं। मूड शिफ्टर्स करके कॉन्सेप्ट होता है, जैसे अ, गीत जो होते हैं। गीत एक बहुत ही सिंपल, बहुत इजी हैक है जिससे आपके मूड शिफ्ट हो जाते हैं। तो अपने पास कुछ ऐसे गीत हमको सदा रखने चाहिए कि विच आर इमरजेंसी सॉन्ग्स, कि यार जब कुछ भी सही नहीं है तो इस सॉन्ग से आई वुड रिमेम्बर सम थिंग्स अबाउट मी जो कि विल नेवर चेंज अबाउट मी। तो वो गीत जो होते हैं, दे आर सीक्रेट शिफ्टर्स फॉर अस। दूसरा एक होता है कि गीत तो हमारा मेंटल एनवायरनमेंट बदल रहे हैं, माइंड का एक एनवायरनमेंट बदल रहे हैं। दूसरा एक होता है कि जहाँ पे आप हैं, जहाँ पे ये संकल्प आते हैं सारे, वहां से हटकर कुछ एक ऐसे एनवायरनमेंट में जाएं जहाँ पे उस पर्टिकुलर एरिया से अलग वो एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट इज फिजिकल। तो जब ये सारे जो भी कड़े इमोशंस होते हैं ना, इसमें हमको अपने ऊपर ट्राई एंड टेस्ट करना पड़ेगा। किसी के लिए एनवायरनमेंट काम नहीं करता, किसी को गीत सुनना पसंद नहीं है, तो उस चीज में यू शुड हैव एन एंकर जो कि आपको उस इमोशनल डेट से निकाल पाए। नहीं तो वो क्या होता है, बहुत भारी वेव आती है, फिर आपको लग रहा है कि नहीं, दिस दिस इज द रीजन विच
बिकॉज ऑफ विच इट हैपेंड, पर आपको वो फील बहुत ज़्यादा होने लग जाता है। तो उस चीज़ से निकलने के लिए अपने को देखना है कि कौन सा चीज़ मेरा सीक्रेट शिफ्टर है, मूड शिफ्टर है, एंड देन वी नीड टू प्रैक्टिस दैट। Perfect, wonderful answer. I think बहुत अच्छे से आपने बताया. This both the things I think somewhere I have tried and they have worked. So Yeah. that's true. I think we have to make a playlist of emergency songs. So that's a beautiful word you have used. Emergency songs. Yeah. Yes. Okay. Okay. So I think if there are no more questions, then we can conclude the call. किसी का कोई प्रश्न है? No? परफेक्ट. सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट प्रतीक भाई जी, आपने समय दिया और आके इतना ब्यूटीफुली मतलब तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट को समझाया. और आई थिंक आपकी वॉइस भी बहुत स्वीट है, तो इट वाज वेरी प्लीजिंग टू हियर यू ऑनेस्टली. आई वुड से मेरा मतलब मैं बैठ के सुन रहा था तो आई noted that you are so soft spoken that it was really pleasing to hear you. And so beautifully you have covered. I think guilt is something that all of us are experiencing, and from the insights of this session definitely it will help us. And then we think this is one session, and then maybe if you have time, so on some other Sunday we want to have you again with some other session. Sure, Okay. sure, sure. And I hope you are available on LinkedIn, so where people can connect you later if at Yeah. all they wanted to. So Yes. आप प्रतीक भाई जी को LinkedIn पे कनेक्ट कर सकते हैं, प्रतीक श्रीवास्तव. And yeah, so you can stay in touch with him. So thank you so much for joining on this Sunday. And अगर आप मेडिटेशन क्लब से जुड़े नहीं हैं और जुड़ना चाहते हैं, देन मैं अभी लिंक चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, आप जुड़ सकते हैं. हम लोग रोज मॉर्निंग में 6:30 to 7 मेडिटेशन करते हैं. देयर इज वन स्पीकर हु ड्राइव दिस सेशन, and again this is free of cost, just to help others to become their best version. And then again next Sunday we would be having another expert talk with a different topic. If you want कि हम कोई particular topic पे expert talk करें, then you can let us know and message me. I am there in the group, my number is there in the group, and we will organize the expert talk on that particular topic. So with that I'm just pasting the WhatsApp link in the मेडिटेशन क्लब का मैंने व्हाट्सएप लिंक शेयर किया है, जो इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर सकते हैं. ऑल राइट, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. शुक्रिया. Thank you. ओके.